हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 11। इसमें जो आज हम करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th हो, 10th 11th 12th, सीबीएसई यूपी बिहार बोर्ड, किसी भी क्लास के बच्चे हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी में अगर उनके पास पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है तो ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उनके लिए होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम में आपको आपके ही लैंग्वेज में समझाया जाता है। साथ में आपके समक्ष जो है डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है, तो आपके लिए नोट डाउन करना भी बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, तो वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important topic doing here. There's a law making procedure in the parliament. There is a most important here, the law making procedure in the parliament here. Appointed are the earlier basis of the parliament, the law making body, and any proposed law is introduced in the parliament as a bill. After being passed by the parliament and getting there is a precedent as assent, it's become a law. Now you will study how to the law is made by there is a parliament. There are two kind of bill, the which come up to before the parliaments, and there are ordinary bill and the money bill here. Here we shall be discuss the relatives procedure in the each of this kind of bill. The two types of a bill here is the first here is the ordinary bill. Every member of parliament has a right to be introduced on ordinary bill and form. This is the point of view. We have two types of bill. Government bill be a private members of bills. There is two types. There is ordinary bills here, two types of government bills and private members bill. A minister's move a government bill, maybe bill is not be moved by the minister is a private member's bill, which means that is a bill has been to the move by a member of parliament but not a minister in the government. The government bill is a consumes most of the time of the parliament. The bill be passed through the several stage. There is a several stage here. The first stage, with the first stage here, with the introduce of the bill, the first reading of the bill starts. This stage is simple. The minister is wanting to introduce a bill, inform the presiding officer, and he put up the question of introduction of the house. When the approval of normally voice and the vote, the minister is called to the point to introduce the bill. And second here, there is second is a reading. This stage is a mostly vital stage. After is a general discussion, the house has a four option. First option here, it is a maybe is a stage way of take a bill into the detail is a cousin to the by a cases and considers are. And second is a refer is to a select a committees of the house. And third here, the refer to the joint of committees of the both the houses. And the next year and the final here is circulate in the among the people to elect it as a public opinion. If the bill is referred to a select a committee of their house or the joint selected committee for the both houses, the considered is a committees examine the bills every minute. The each as very casual to the examine. The committees may be also take opinion of professional and legal expert. After due to the deliberations, the committees are submitted its a report to the houses.
The next year is a third reading. After the completion of the second reading, the minister may be moved. The bill be passed. At the stage of normally no discussion take place. The members may be opposed or support the adoption of the bill by the simple majority of members are present and the votings. And the second stage here bill in the deport to the house. The next year a third reading. After the completions of the second reading, the minister may be moved that the bill be passed. At this stage, normally no discussion take place here. The members may be opposed or support the adoption of the bill may be simple majority of members present and voting. There is the next here is the most important bill in the other house. There is the most important after bill has been to pass by the house, it goes to be a other house. Here also is a some procedure of the three reading in the following consequence is may be flow. There is a first here, it may be passed it, then will be sent to the president for the assent. And second is here, it may be passed the bill within the amendment, but the bill will be sent back to the first house. Or in house such a case, the first house will be considered to the amendment, and if it is accept the amendment, that will be sent to the president for the assent. There is the most important point, not down. There is a president for the assent, the bill will send. And in case the first house refuse to accept the amendment, that means that is a deadlock. And the next the part of second, there is it a C part, it may be reject it. It means there is a deadlock. In order to remove the deadlock and between the two houses, the president may be called a joint sitting of the two houses. And such a joint sitting are very rare in the Indian, until now only 3 times such a meeting has been taken place. There is a most important line here, note down. There is such a joint sitting are very rare Indian, until now only 3 times such a meetings have to take place. There were convinced on the occasions of passes of the Dowry Provision Bill. It's 1959, and Banking Service Commission's Ripple Bill is here, and 1978 and Prevention of Terrorism Bill of 2002. There is a most important bill. There is a passed here, and next year the president is assessed to be a bill. There is the most important here. After beginning pass, the both the houses are joining sitting of the both houses. The bill will refute to be a president for his assent, and the president also has a some option in this regard. Their first option here, he may be give is assent, and with their assent the bill become a law. And second is here, he may be withhold their assent but may be suggest some changes. There is a most important point, but there is suggest some change. In such a case, the bill is sent back to the house for the where had originated. And but if the both the houses pass the bill again without accepting the recommendation of the president, there is the both house pass the bill again with or without accepting to the recommendation of the president. The president has a no option but give the assent. There is a not option for this stage. The third option here, in 1986, the president Gyani Jali Singh is invited a new option. He neither give the assent nor he is returned it is the parliament for the reconsideration of the postal bill. The suggestion as clarifications will there is a never be provided the bill there's a lapsed. There is the most important here bill the lapsed. And next here, money bill. There is the most important for there the money bill here. The money bill are such a bill which deal with the money matter, like the imposition of the taxes, governmental expenditures and borrowings, etc. In the case there is a debt despite us the whether as a bill is a money bill or not. The speaker is a discussion of final. The money bill has to be undergoes 3 readings like an ordinary bill, but few considerations are also added there. And they are the money bill can be introduced only in a Lok Sabha, not at the Rajya Sabha. There is a most important point. The money bill can be introduced only on Lok Sabha, not a Rajya Sabha.
and that too with the priors is approval of and we have of the president. There is the most important. The president here approval this bill. There is the most important here. Only pass the Lok Sabha. Also important this word. And second here states after beginning passed by their Lok Sabha, the bill goes to the Rajya Sabha. The Rajya Sabha has a 14-day at a disposal for their consideration and the report. 14 days is a provision. The Rajya Sabha cannot reject the money bill. Is important. The Rajya Sabha is a not cannot be rejected the money bill. It may be either accept it or make accommodations. And next year, in the case Rajya Sabha is a choose to the make a recommendation, the bill will be returned to the Lok Sabha. The Lok Sabha may be accept this recommendation or reject them. In any case, the bill will be not go back to the Rajya Sabha. Instead, it will be sent directly to the president for his assent. And the fifth year, if the Rajya Sabha does not be returned the bill within the 14 day, there is a provision the 14 day return to the bill. But it is not returned to the bill of 14 day, it will be is a deemed to be has been passed by the both houses of the parliament and the sent to the president for the his assent. There is the most important. The one important point here is coming. The bill that deal with the money matters, imposition, evaluations, and alternation of many tax or regulation of the borrowings of money and giving on the grantees by there is a government of India and assessment of the law with respect to any financial obligation undertaken by the government of India are related to the constitutive fund and contingencies fund of India is called to the money bill. Then next is point is the most important the budget. The budget is the most important. The budget here is the annual finance statement and showing the expected to the revenue and the expenditures of the public money. It is not a bill. There is a budget is not a bill. Is a budget is a different types of here. Every year budget is presented by the finance minister in the Lok Sabha. The finance minister is represented by the Lok Sabha. The budget making a big exercise. The finance minister is a prepare a budget but is involved to the entire government. The budget in the India presented in the two part. There is a railway budget and general budget. There is a two types here is a present in India. The railway budget and the general budget. The here first point presentation of the budget. Why the presentation is the budget here? The railway budget is generally presented by the railway minister in third week of February. The third week of February, that is represented by the railway minister of the railway budget. Well, the generally is a budget is presented but normally on the last work day of February. There is the most important last working day of February, and the general budget is presented along with the speech of finance minister. The budget remains closely guarded to secure till it is a presentation, and after the speech of the finance minister, introduce the finance bill, and which is a content to the taxation proposal of a government, and the house rise the three after, and there is no discussion on the day of presentation of the budget. A new system of departmental selection committees has been introduced in India since 1993 to 94. The Lok Sabha has set up the committee for all major ministries and department of union government. There is a most important point here coming. There are Lok Sabha set up to committees for all major ministries and department of union government. The select committee has considered demand for a grant in the detail and submit their recommendation to the Lok Sabha. After the general discussion on the budget, the House is adjourned for about the 3 weeks. During this period, selected committees of the Department of Ministry are scrutinized of budget demanded and maybe make a recommendation. And this saves time of the fully house. The full Lok Sabha now does not be discussed demand for the grant one by one in detail. There is the most important. There is a granted by the demanded of the one by one in detail, and quorums is a mean to the minimum number of members required to be present to be enabled there is a house to meet. And this one of
10th of the total membership of the house, and this means there are meeting of the Lok Sabha or Rajya Sabha can take place only if the 10th of the total membership of the house is present. भारतीय संसद के अनुसार अगर हम देखें इसके जो अगले पॉइंट पे जिसमें लिखा है संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, देखिए संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे हमारा जो होता है बजट पास होता है, कैसे साधारण बिल पास किया जाता है, कैसे मनी बिल होती है, तो ये सारी बातें जो है अपनी जगह पर एक विशेष स्थान रखती है और जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये सारे कार्य जो होते हैं संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और ये टॉपिक कई मायने में हर क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है अगर उनके जो सिलेबस में इस तरह के टॉपिक जो है। तो कहते हैं जैसे कि पहले भी कहा जा चुका है कि संसद मुख्यतः कानून बनाने वाली संस्था मानी जाती है, यानी देखा जाए तो अगर आप अमेरिका के साथ इसकी तुलना करोगे तो अमेरिका में देखोगे कि सीनेट के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, यानी कांग्रेस के जो मेंबर्स सब होते हैं वो कानून बनाने की सारी प्रक्रिया को निभाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है संसद में सारी कानून बनाई जाती है, यानी वहाँ पर सिर्फ जो है कांग्रेस को ही मिला हुआ है कानून बनाने का अधिकार जिसमें सीनेट के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर कानून बनाने का जो पूरा जिम्मा है मुख्यतः जो है संसद के पास ही है और संसद में ही जाके सारे कानून बनते भी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रावधान किया गया है। कोई भी जो है प्रस्तावित कानून संसद में एक विधायक के रूप में प्रस्तावित किया जाता है और संसद में पारित होने तथा राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यह कानून बन जाता है। ये तो आपको भी पता है कि जब तक संसद में कोई भी कानून बिल पास नहीं होता है, ठीक है, तब तक जो है राष्ट्रपति के पास वो नहीं जाता है और राष्ट्रपति के बाद जाने के बाद स्वीकृति प्राप्त करने के बाद वो कानून बन जाता है जिसको सबको मानना ही पड़ता है। ठीक है, अब आप यह अध्ययन करेंगे कि संसद किस प्रकार कानून बनाती है। संसद के समक्ष आने वाले विधायक दो प्रकार के होते हैं, साधारण विधायक और धन अथवा वित्तीय विधायक। ठीक है, कहते हैं ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा। ठीक है, इन दोनों प्रकार के विधायकों को कानून बनाने की प्रक्रिया का जो है हम विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे समक्ष जो है कौन सा विधायक आता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले है साधारण विधायक। कहते हैं संसद के प्रत्येक सदस्य के साधारण विधायक प्रस्तावित करने का अधिकार है, यानी संसद के जितने भी अध्यक्ष होते हैं सबका जो है महत्वपूर्ण योगदान होता है साधारण विधायक पास करने में। ये इस दृष्टिकोण के आधार पर विधायक दो प्रकार के होते हैं, एक तो होंगे सरकारी विधायक और एक होंगे गैर सरकारी विधायक। ठीक है, मंत्री सरकारी विधायक प्रस्तावित करते हैं और जो विधायक किसी मंत्री द्वारा पेश नहीं किया जाता है वो गैर विधायक होते हैं, जिसका अर्थ ये माना जा सकता है कि ऐसा विधायक किसी संसद द्वारा पारित किया गया है, न कि किसी मंत्री द्वारा। संसद का अधिकतर समय सरकारी विधायकों को निपटने में लग जाता है और विधायक को कई आवश्यकताओं से यानी अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, यानी ये कई अवस्थाओं से गुजरती है तभी जाके जो है ये साधारण बिल विधायक पास होती है। तो इसके चरण को देखना अत्यंत रोचक रहेगा। चलिए देखते हैं इसके चरणों का कि क्या इसमें इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें सबसे पहले तो यही आता है प्रथम वचन। प्रथम वचन जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। विधायकों की जो है प्रतिस्थापना के साथ साथ विधायक का प्रथम वचन आरंभ हो जाता है, यानी जब यह स्टार्ट होती है कोई भी कार्य तो इसको प्रथम वचन के अंतर्गत ही लिया जाता है और ये अवस्था बड़ी सरल होती है। जिस मंत्री को विधायक प्रस्तावित करना होता है वो अध्यक्ष को सूचित करता है। अध्यक्ष यह प्रश्न सदन के समक्ष रखता है। जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो ये सामान्यतः जो है ध्वनि मत हो जाती है, जो संबंधित मंत्री के विधायक को प्रतिस्थापित करने के लिए बुलाया जाता है। तो प्रथम में तो यही होता है कि यहाँ पर मंत्री को विधायक प्रस्तावित करना होता है और सबका जो है स्वीकृति भी लेना होता है। अगर मान लीजिए सबको 2/3 की बहुमत से स्वीकृति प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर पहला वचन के रिगार्डिंग जो है ये कार्य संपन्न हो जाता है। अगर बात करें द्वितीय वचन का तो कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। सामान्यतः चर्चा के पश्चात सदन के 4 विकल्प आते हैं। देखिए 4 विकल्प होते हैं संसद के पास, यानी जो सदन होते हैं उनके पास 4 विकल्प होते हैं। तो पहला विकल्प तो यही होता है कि सदन स्वयं विधायक पर प्रस्तुत धारावार चर्चा करे। देखिए कोई भी चीज़ पास होने से पहले उस पर चर्चा की जाती है
कि भाई ये क्यों इम्पोर्टेंट है और भी जो ऑपोजिट दल होते हैं इसका विरोध भी करते हैं। तो चर्चा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चा होने से ही इसका सही कंक्लूजन जो है निकल सकता है। बात यदि हम करें दूसरे पॉइंट की, जिसमें विधायक सदन के जो है प्रवर समिति को भेज दे, यानी विधायक सदन को जो है प्रवर समिति को भेजना भी इसके अंतर्गत आता है। कहते हैं दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दे, यानी दोनों सदन जो होते हैं उनमें भेजना जो है समितियां बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि उसमें जांच परख किया जा सकता है कि ये किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट आगे चल के तो नहीं करेगा। इससे क्या होता है देश में कई तरह की समस्याओं से भी हम बच सकते हैं। कहते जनमत जानने के लिए जनता में विपरीत करें, यानी जनमत लेने के लिए जनता को भी पास प्रस्तुत करें, ये भी बात बहुत ज़रूरी होती है। देखिए कई कानून बनाए गए, हमारे देश में भी बनाए गए, जिसका जो है आम जनताओं ने विरोध करके उसको तहस नहस किया। जब किसान बिल आया तो ये दोनों सदनों से पास किया गया, तब जाके एक कानून बनी। लेकिन किसान बिल के कारण न जाने कितने लोगों की जो है आहुति चढ़ गए, कितने तरह के सांप्रदायिक दंगा फसाद हुआ, और इसके वजह से बहुत ही किसानों को जो है अपना जान तक भी गंवाना पड़ गया। इवन कि किसानों को जो है कई प्रकार के तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। अगर ये बिल अगर देखा जाए, अगर जनता के समक्ष रखी जाती और जनता से राय विचार पहले ली जाती, तो शायद इस तरह के जो है तकलीफों को देखना नहीं पड़ता। तो ये भी बहुत जरूरी है कि जनमत जानने के लिए जनता के विपरीत करें। यदि विधायक प्रबल समिति अथवा संयुक्त परिवार शिविर को सौंपा जाता है तो संबंधित समिति विधायक के विस्तृत निरीक्षण भी करता है, प्रत्येक धारा का निरीक्षण भी किया जाता है, और समिति चाहे तो वह विशेषज्ञों को जो है विधेयताओं से भी इसका राय ले सकता है। पूरे विचार विमर्श के पश्चात समिति अपनी रिपोर्ट सदन को भेज देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है तृतीय वचन। देखिए तृतीय वचन पूरा हो जाने के पश्चात मंत्री विधायक को पारित करने के लिए सदन से अनुरोध करता है, और इस अवस्था में प्रायः कोई चर्चा नहीं की जाती है, और सदन केवल विधायक विरोधी या पारित करने के लिए विधायक का समर्थन अथवा उसका विरोध कर सकता है। इसके लिए उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का जो साधारण बहुमत आवश्यक होता है। तो इसमें कहा जाए तो इसमें अवस्थाओं में प्रायः कोई चर्चा नहीं की जाती है, ठीक है, और सदस्य केवल विधायक विरोधी या पारित करने के लिए विधायक का समर्थन की आवश्यकता होती है, या उसका वो विरोध भी कर सकते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है द्वितीय सदन में विधायक। देखिए किसी एक सदन से विधायक पारित हो जाने के पश्चात उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और यहाँ पर भी वही 3 वचनों वाली प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसका जो है परिणाम कुछ इस प्रकार देखने को मिल सकता है। पहली बात तो यही है सामने आती है कि विधायक पारित कर दिया जाए या फिर उसे राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाए। विधायक में कुछ संशोधन करके उसे पारित किया जाए, या विधायक पहले पारित करने वाले सदन को भी वापस भेज दिया जाता है। इस दशा में पहला सदन संशोधन पर विचार करेगा, और यदि उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है तो विधायक राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। यदि पहला सदन संशोधन को मानने से मना कर दे तब इसे जो है गतिरोध माना जाता है, यानी इसको विरोध माना जा सकता है, जो कि ये प्रावधान किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष दूसरे सदन विधायकों की अस्वीकार भी कर सकता है, इसका अर्थ गतिरोध ही माना जाएगा। दोनों सदनों में इसे गतिरोध को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। ऐसे संयुक्त अधिवेशन बहुत कम होते हैं और ऐसे बहुत कम देखने को ही मिले हैं। ऐसा केवल अभी तक 3 बार ही हुआ है, जो दहेज विरोधी अधिनियम पास किया गया था, इसमें जो है संयुक्त बनाया गया था, और इसमें राष्ट्रपति को भी सम्मिलित किया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने दोनों सदनों का जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया था, क्योंकि ये दहेज प्रथा विरोध था, जो कि 1959 में जो है ये प्रावधान बनाया गया था। उसके बाद बैंक सेवा आयोग यानी निरस्तीकरण अधिनियम 1979 को भी प्रस्तावित करने पर जो है राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को अधिवेशन बुलाया गया था। उसके बाद आतंकवाद रोकने के लिए भी 2002 के अधिनियम के पारित करते समय ये जो है सदन को बुलाया गया था। यानी देखा जाए तो 3 बार ही ऐसा हुआ, लेकिन ये उन समय हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके पश्चात विधायकों पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति। देखिए दोनों सदनों अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से विधायक पारित होने के पश्चात इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही अंतिम जो होता है निर्णय मानी जाती है। राष्ट्रपति के पास भी कुछ विकल्प होते हैं, वो विकल्प इस प्रकार हो सकते हैं, वो अपनी
पहली स्वीकृति प्रदान करे, जिसके साथ ही विधायक कानून बन जाता है। यानी स्वीकृति प्रदान करे या राष्ट्रपति स्वीकृति देने से पूर्व परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव भी दे सकता है कि भाई इसमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ये विधायक इसी रूप में पास करना संभव नहीं है, तो वो आपस चला जाता है। इस दशा में विधायक इसी सदन के पास भेज दिया जाता है जहां वो आरंभ हुआ था, यानी आरंभिक स्थिति में पहुंच जाता है। परंतु यदि दोनों सदन राष्ट्रपति के सुझाव मान ले या न माने और विधायक पुण्य पारित करके राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति के पास कोई स्वीकृति प्रदान करने से अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं शेष रह जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है धन विधायक वित्तीय विधायक, यानी मनी बिल। जो मनी बिल होती है वो विधायक जिसका संबंध वित्तीय धन से होती है, और जैसे टैक्स लगाना, सरकारी व्यय करना, ऋण प्राप्त करना आदि धन विधायक कहलाता है। यदि यह निर्णय हो पाए कि कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, तो अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। साधारण विधायक की तरह धन विधायक को भी पारित करने के लिए भी उन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजारना पड़ता है, परंतु इसमें कुछ अन्य शर्तें जुड़ी हुई होती है। वो ये होती है कि धन विधायक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। ये पॉइंट आपको नोट करने वाला है कि धन विधायक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है और राज्यसभा में नहीं, और यह भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, यानी राष्ट्रपति के जो है अनुमति यहाँ पर अनिवार्य माना जाता है। लोकसभा से पारित होने से पश्चात इसे राज्यसभा को भेज दिया जाता है, यानी लोकसभा से पारित होने के पश्चात इसको जो है राज्यसभा में भेजने का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा के पास इस पर विचार करने का, पारित करने के लिए केवल मात्र जो है 14 दिन ही समय अंतराल मिलता है, यानी 14 दिन के अंदर ही अंदर सारे फैसले देने पड़ते हैं। अगर राज्यसभा धन विधायक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, और इसे या तो विधायक पारित करना होता है या फिर कुछ सुझाव भी देना होता है। यानी देखा जाए तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि राज्यसभा धन विधायक को अस्वीकार भी नहीं कर सकता है, और इसे या तो विधायक पारित भी करना होता है या फिर कुछ सुझाव भी देने की जरूरत पड़ती है। यदि राज्यसभा कुछ सुझाव देता है तो विधायक लोकसभा के पास वापस आ जाता है, यानी सुझाव के जो कंडीशन में जो है ये आपस जो है विधायक लोकसभा में आ जाती है, जहां पर वो उसमें कुछ जो है चेंजेस करना पड़ सकता है। यदि राज्यसभा 14 दिन तक विधायक पास नहीं भेजती है तो यह माना जाता है कि विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है, और इसलिए से राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि धन विधायक होता क्या है। देखिए, धन विधायक होते हैं जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, यानी जो है मनी बिल, यानी पैसों से इनका संबंध होता है। जैसे सरकार द्वारा कर लगाना, कर हटाना, किसी कर में परिवर्तन करना अथवा ऋण लेने की नियंत्रित करना, अथवा भारत सरकार द्वारा किए गए किसी वित्तीय इकरार संबंधी कानून में संशोधन करना, या संचलित निधि अथवा आकस्मिक निधि से संबंधित मामले। यानी धन विधायक के अंतर्गत ये सारे चीजें आते हैं कि वो कर जो है लगा भी सकता है, कर हटा भी सकता है, या कर में परिवर्तन भी कर सकता है। तो ये सारे के सारे धन विधायक के अंतर्गत ही आते हैं, और इसमें जो है सभी को जो है अनुमति लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो अगर सरकार अगर अनुमति की आवश्यकता नहीं हुई तो सरकार तनाशाह हो जाएगा और लोगों से अपना मनमर्जी जो है धन वसूल सकता है। तो इसलिए जो है हर एक क्षेत्र में जो है इसका जाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बजट। बजट जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए और हमारे देश के लिए भी। सार्वजनिक धन से होने वाली आय तथा व्यय की वार्षिक ब्यूरो जो है बजट कहलाता है, यानी वार्षिक ब्यूरो जो दी जाती है वही बजट कहलाता है। यह विधायक नहीं होती है और प्रति वर्ष जो है वार्षिक बजट वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इसका जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है हर साल जो है ये लोकसभा में पेश करते हैं। बजट तैयार करना एक बहुत बड़ी कार्य होता है, और बजट को वित्त मंत्री अपने जो है मंत्रालय की सहायता से बनाता है, परंतु इसमें पूरी सरकारी सम्मिलित होती है। भारत में बजट 2 भागों में प्रस्तावित किया जाता है, एक तो रेल बजट होती है, एक सामान्य बजट होता है। तो ये दोनों बजट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम अगला बात की बजट प्रस्तुत करने का क्या प्रावधान बनाया गया है। कहते हैं अगर बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान कुछ इस प्रकार बनाया गया है। अगर सामान्यतः रेल बजट रेल मंत्री द्वारा फरवरी के तीसरे सप्ताह में प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये प्रावधान है कि रेल मंत्री द्वारा जो है फरवरी के तीसरे सप्ताह में बजट प्रस्तुत की जाती है, जबकि साधारण बजट प्रायः फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी फरवरी में
अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि एक ही महीने के अंतराल में जो है रेल बजट और जो है हमारा साधारण बजट पेश किया जाता है। साधारण बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा भाषण भी दिया जाता है, जिसके पश्चात वो धन विधायक प्रस्तावित करता है, जिसमें सरकार द्वारा कर लगाने के सभी प्रस्ताव शामिल होते हैं। बजट की प्रस्तुति वाले दिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती है, इसलिए प्रस्तावित होने से फौरन बाद सदन की बैठक समाप्त हो जाती है। और वर्ष 1993 से 94 में भारत में विभागीय प्रबल समिति की एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। संघ सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों की जो समितियों का गठन लोकसभा द्वारा किया जाता है। वह प्रबल समिति अनुदान की मांगे पर विचार करने के पश्चात अपनी अपनी सिफारिश लोकसभा को भेज देता है। बजट पर सामान्यतः चर्चा के पश्चात दोनों सदन लगभग 3 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं और इस काल में मंत्रालय को विभाग और समिति बजट की मांगों की जांच पड़ताल करती है और अपनी सिफारिश को तैयार करती है। इसे पूरे सदन का समय भी बच जाता है। अंततः पूरी लोकसभा अनुदान मांगों पर एक एक करके चर्चा नहीं करती है। सदन की बैठकों के लिए न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता जो है गणपूर्ति कहलाती है और यह सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग भी हो सकता है। और इसका अर्थ यह है कि लोकसभा या राज्यसभा की बैठक केवल तभी हो सकती है जब कम से कम सदन की कुल संख्या के 1/10वां सदस्य उपस्थित हो। दोस्तों ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको आपको जानना और समझना चाहिए। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, इसमें से 2 बातें इंपॉर्टेंट होती है। पहला ये कि अगर आप जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर करना है या दूसरे बच्चे को पहुंचाने का विकल्प भी आपने रखना है। और दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हित में होगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मान लीजिए कोई वीडियो आपको पसंद होगा तो आपको डायरेक्ट जो है इसके जो है लिंक से प्राप्त हो जाएगा जहाँ इसका हाउस होगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई टॉपिक रिसर्च करते हो यूट्यूब पे तो पहले जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर के द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो आपको प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जिससे जो है आप अनभिज्ञ रह जाइएगा। लेकिन सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के जो है होम पेज पे चले जाओगे और वहाँ पर आपको जो है वीडियो का ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा बनाए गए सभी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा उस वीडियो को देख के जो है आप जो है समझ सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त भी कर सकते हो।